Namaste and Yokar. Very good evening to all the ladies and gentlemen. On behalf of Government of Goa, Directorate of Art and Culture, we welcome today's speaker, Madam Nivedita Bhide, today's moderator, Ma'am Sangeeta Abhyankar, all the officials, committee members, enthusiasts, teachers, students, media personnel, and each and everyone present here. This is 14th edition of DD Kosambi Festival of Ideas, and this is the 4th day. Last 3 days, we've had wonderful sessions through eminent personalities on different thoughts, different ideas, which was really thought-provoking and inspiring. Today is the 4th day, and we have Ma'am Nivedita Bhide for us, and she's a Padma Shri recipient. I would like to request our director, Shri Sagun Velip sir, to escort Madam Nivedita Bhide and today's moderator, Ma'am Sangeeta Abhyankar, on stage. Can we give them a round of applause? Warm welcome, ma'am. I request Shri Sagun Velip sir to present fruit baskets to our today's speaker and the moderator. It's really a privilege to have you here, ma'am. But with equal pleasure, we would like to welcome Ma'am Sangeeta. Thank you, sir. Kind request to both of you to occupy your seats. Let me introduce our today's moderator. Ma'am Sangeeta Abhyankar is a versatile and accomplished multilingual writer, poet, orator, and accompanier. With a proven track record of hosting hundreds of state, national, and international events, she is renowned for her exceptional interviewing skills, having interacted with numerous eminent personalities. A passionate advocate of science, Sangeeta is the founder of Jidnyasa Vidnyan Kendra in Ponda and an active member of Vidnyan Bharati New Delhi and Vidnyan Parishad Goa. Committed to giving back to society, Sangeeta is also the founder-president of Swarnad Speech Therapy Center, supporting children with hearing impairments. Her outstanding contributions to science and socio-cultural fields have earned her numerous prestigious awards. With permission from you all, I request Ma'am Sangeeta Abhyankar to take over the further proceedings. Thank you, Siddhi. I have 5 minutes to my disposal as a moderator, of which 3 minutes will be dedicated to introduce the eminent speaker of the day and 2 minutes for interesting analysis for the audience here to have a better connect to the topic of the day. Namaskar. It's my immense pleasure and privilege to introduce Jeevanvrati Nivedita Raghunath Bhide in the 4th session of the 14th edition of DD Kosambi Festival of Ideas. A Jeevanvrati is a person who has dedicated his or her life to the service of humanity. Nivedita ji joined Vivekananda Kendra Kanyakumari as Jeevanvrati in 1977 when she was merely 19 years old. Presently, she shoulders the responsibility of All India Vice President of Vivekananda Kendra Kanyakumari. She has some special responsibilities that include training of teachers of Vivekananda Kendra Vidyalaya and coordination of Vivekananda Kendra Institute of Culture at Guwahati. She is regular faculty in All India Yoga Shiksha Shibers and spiritual retreats. She has represented India in the seminar on Swami Vivekananda 2013 at Melbourne, Australia. She has also represented India in the international meeting of educational experts at Darwin, Australia, convened by UNESCO for the Asia-Pacific region in the year 1999.
She is a trustee of Vivekananda International Foundation, New Delhi, since its inception. She was member in many committees and councils like NCTE, ICER, and many more. Having written over 19 books which are translated in different languages, Nivedita ji has also presented papers at national and international seminars. She was invited to universities, including the Kansas University in United States of America. In the year 2017, she was conferred upon the 4th highest civilian award, Padma Shri, by Government of India. She is a recipient of various other prestigious awards. To name a few, Life Fellow Award from IIT Kharagpur in 2024, Shiksha Bhushan Award from Akhil Bharatiya Shaikshik Mahasangha in 2019, Vandaniya Saraswati Tai Apte Award for Bharatiya Stri Jeevan Vikas Parishad, Thane in 2005 for her sustained work in the society. She has been conferred upon the honorary doctorate by Desh Bhagat University, Punjab in 2017 and SNDT Women University, Mumbai in 2019. We are indeed fortunate to have a speaker who has her thoughts and actions in unison. Now, my 2 minutes. In modern chronological classification, our speaker belongs to baby boomer generation. The moderator, that's me, belongs to Gen X. The compeer, Siddhi, belongs to Gen Y or the millennials. And the audience here is having Gen Z, Gen Alpha, in addition to baby boomers, Gen X and Gen Y all together. This is a heterogeneous crowd today. The citizens are now netizens. Media has now a new dimension of social media. Crimes are with an added flavor of cyber crimes. Work culture has changed itself to WFH, F2F or hybrid mode. We no more write. We text, we post, we tweet, and we troll. Our identity tags are our DPs and social media handles. Fake is now deep fake. We have a new normal for many things. The simple friendship and relationship have now more categories to it, which many of us may not know, but the Gen Alpha will know it better. They have dating, benching, breadcrumbing, situationships in addition to the simple friendships and relationships. We talk of new culture, which are cancel cultures and woke cultures. We express emotions through emojis. So, to these netizens of 2025, what is the relevance of the message of Swami Vivekananda is something what we are all eager to know. The relevance of the message of Swami Vivekananda, and it's over to Jeevanvrati Nivedita Bhidej. My namaskars to you all. I am very happy to be with you all on the 14th festival of great scholar D.D. Kosambi. He touched, he contributed originally. That is something great about him. And today when what we need is such rigor. Whichever field we go, we make our mark. Not just holding operations. लेकिन जो भी हमारा दायित्व है,
हम उसको इस प्रकार से निभाते हैं कि हमने कोई विशेष और डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और सारी ही फैकल्टीज, आज की मॉडरेटर संगीता अभ्यंकर and all those who are present here, my namaskars to you all. शायद नहीं भी लगेगी, लेकिन विषय बड़ा अच्छा है। उस संदेश को लेकर आज के परिप्रेक्ष्य में हम उसको समझने का प्रयास करने वाले हैं। जब भी हम कहते हैं स्वामी विवेकानंद, तो लोगों को इतना ही पता होता है कि उन्होंने सर्वधर्म परिषद में सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ऐसा बोलते हुए बोलना शुरू किया और लोगों ने बहुत देर तालियां बजाई। इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आमतौर पर सबको पता है। जो थोड़ा अध्ययन करते हैं उनको थोड़ा इससे ज़्यादा पता है, कुछ लोग हैं उनको कुछ कोटेशंस पता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद का संदेश यह केवल उनके कोटेशंस या उन्होंने क्या किया इसके लिए नहीं है। तो आज का जीवन जिस प्रकार से जटिल है, जो समस्याएं मानव समाज के सामने हैं, उन समस्याओं का हम कैसे निराकरण कर सकते हैं, उसका सामना कैसे कर सकते हैं, इसके लिए स्वामी विवेकानंद का संदेश है। अभी मैंने जो बताया कि स्वामी विवेकानंद वॉज ए यूनिक पर्सनैलिटी। व्हाट वॉज सो यूनिक इन हिम? फर्स्ट थिंग, you know, he had studied in depth the Western philosophy as well as Eastern philosophy. There is one incident when he was studying in college. There was elocution competition, and Narendranath Dutt, which was his earlier name, he went to speak in elocution competition, and while speaking there, the way he was speaking, one visiting professor who had come from London, who was sitting there, you know, he said that this man is not ordinary, this boy is not ordinary. Mark me, he is going to reach some great heights. The way he is quoting Bible, Kant, Hegel, the way he generalizes the overall observations or the study or the thinking about human life, he is not ordinary. ये कांट, हेगेल वगैरह इनका फिलॉसफी को लेते हुए उनको सर्टिफिकेट एक विजिटिंग प्रोफेसर से जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे तब मिला था। वही स्वामी विवेकानंद ने सारे उपनिषद, गीता, इसका भी अध्ययन किया था। अभी अपनी जो फिलॉसफी या तत्वज्ञान है ना, उसकी विशेषता ऐसी है कि ये सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं है। यानी जैसे मुझे गीता मुखपाठ होगी, मैं गीता पे बहुत अच्छा भाषण दे सकती हूँ, लेकिन यदि गीता के तत्व मेरे जीवन में नहीं है, यदि मैंने उसकी अनुभूति नहीं की है, तो मेरे स्कॉलरशिप की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है। यानी हमारे यहाँ तत्वज्ञान या धर्म या वेदांत या अध्यात्म, जो भी शब्द हमें देना है, वह अनुभवजन्य है। यानी जब तक आप अनुभव नहीं लेते, आपके शब्दों का महत्व कम है। और ऐसी अनुभूति पर विश्वास करने वाला भारत का तत्वज्ञान, एंड स्वामी विवेकानंद ने वह अनुभूति भी अपने गुरु के चरणों में बैठते हुए ली थी। यानी सिर्फ अध्ययन नहीं, अनुभूति भी। अभी इतना ही नहीं कि उनको दोनों जगत का तत्वज्ञान पता है, उन्होंने, क्योंकि तत्वज्ञान आखिर समाज में कैसे जीवन में है, समाज क्या सोच रहा है, समाज कौन सी दिशा में जा रहा है, ये भी समझना आवश्यक होता है। और स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज और उसी प्रकार से अमेरिकन सोसाइटी, इनका भी
उस प्रकार से अध्ययन किया। भारत में हम जानते हैं वो 1 बरस उन्होंने पूरी परिक्रमा की। एक वॉन्डरिंग मॉन्क जैसे वो जा रहे थे, यानी उनके हाथ में पैसा नहीं था। कोई टिकट खरीद के देगा तो वो जाएंगे ट्रेन में, नहीं तो पैदल जाएंगे। कोई खाना खिलाते हैं तो खाएंगे, भूख लगती है तो भिक्षा मांगेंगे, मिलता है तो खाएंगे, नहीं मिलता है तो खाली पेट पेड़ के नीचे सो जाएंगे। कोई घर में बुलाता है तो घर में जाके सोएंगे। ऐसा 1-1.5 बरस उन्होंने पूरा भारत का परिभ्रमण किया। अभी जब उन्होंने ये परिभ्रमण किया, उन्होंने देखा, क्योंकि उनका आंतरिक मूल्य तो था ही, जब लोग उनसे बोलने लगते थे समझता था ये साधारण व्यक्ति नहीं है। और फिर उनको बुलाया जाता था घरों में, महलों में। बड़े बड़े राजाओं ने अपने महलों में भी उनको बुलाया। वो एक कंडीशन पे जाते थे, मैं आऊंगा लेकिन मुझे मिलने सर्वसाधारण मनुष्य को रोक नहीं होनी चाहिए। And that is how he stayed in palaces, he stayed in huts, he went in the forest, the cities, the villages, he interacted with the educated, the uneducated, the rich, the poor। और ये सारे इसमें से होते हुए उन्होंने भारतीय समाज को देखा, बड़ा करीब से देखा। उन्होंने देखा ये समाज जो कभी स्वर्ण भूमि कहलाता था, ऐसे राष्ट्र में जिया हुआ समाज आज दारिद्र्य में गिरा है। जो कभी ज्ञान भूमि कहलाता था, आज हम अज्ञान में हैं। और फिर भी उन्होंने देखा कि आज भी इस समाज की कोई शक्ति है। यानी एक सर्वसाधारण किसान भी सारी कठिनाइयां हंसते हंसते ये ईश्वर की लीला है, ये मेरा कर्म है करते हुए जीवन का सामना कर सकता है। वो रोज अपनी 4 रोटी साथ लेते हुए 1-2 रोटी किसी कोई रास्ते से आएगा, कोई गरीब आएगा, सन्यासी आएगा, उनको मैं खिलाऊंगा करके 4 रोटी लेकर खेत में जाता है। सहजता से लीला वगैरह ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। उन्होंने देखा यही भारत है जहां ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम पापी नहीं हो, तुम बेकार के जन्मे नहीं हो, तुम्हारे जीवन का कोई प्रयोजन है, तुम साक्षात ईश्वर स्वरूप हो, ईश्वर के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर सारी शक्ति है। और यदि आप प्रयास करते हैं तो उस शक्ति का प्रगटीकरण हम अपने जीवन में कर सकते हैं। ऐसे भूमि में जन्मे हुए हम पश्चिम की तरफ आंख लगा के बैठे थे, आत्मविश्वासहीन होकर बैठे थे। बोलने के लिए तो बोलते थे सर्वम शक्तिमयम जगत ईशावास्यमिदं सर्वम, बोलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो यहां से चला गया था, वो जीवन में नहीं था। तो ऐसा सारा कहाँ शक्ति है, कहाँ हम गिर गए हैं, ये सारा स्वामी जी ने देखा। और आप जानते हैं ये सारा देखकर ही अत्यंत व्यथित होकर, जो प्रेम उनको सारे अपने समाज के प्रति आया, अत्यंत व्यथित होकर कन्याकुमारी गए। और वहां जो समुद्र में स्थित शिला है उस पर उन्होंने 3 दिन 3 रात बैठकर ध्यान किया। ध्यान का विषय क्या था? अभी वो सन्यासी थे, रोज ही ध्यान करते थे, लेकिन उस समय का वहां का ध्यान यह ईश्वर के लिए, शांति के लिए, समाधि के लिए नहीं था। वह ध्यान जो था वह इसलिए था कि मेरे देश के लोगों के लिए मैं क्या करूं। ये मैं क्या करूं प्रश्न जब हम स्वयं को पूछते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक जीवन की तरफ जीना शुरू होता है। मैं मेरे लिए क्या करूं जब तक सोचती हूं, मैं तो, ये तो प्राणी भी करते हैं ना, प्राणी भी खुद का क्या कहते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। वो भी बड़े होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, बच्चों को बड़े करते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं और क्या करूं? यह प्रश्न जब हर कोई पूछता है, वो प्रश्न स्वामी जी ने उस शिला पे पूछा। और वहां उनको उनका जीवन ध्येय प्राप्त हुआ कि आज मेरे देश की कमी सिर्फ ये है, हम आत्मविश्वासहीन होकर बैठे हैं, हमें हमारी अच्छाई दिखाई नहीं देती। तो मैं मेरे देश के लोगों का आत्मविश्वास जगाऊंगा। मैं अमेरिका जाऊंगा। मुझे रास्ते में बहुत लोगों ने बोला, लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे बाहर जाने में कोई रुचि नहीं है। मैं इस देश, मेरे देश के लिए, मेरे लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। और स्वामी जी ने वहां निर्णय लिया, वो अमेरिका जाएंगे, सर्वधर्म परिषद में भारत की सारी आध्यात्मिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसका सामान्य नाम, कॉमन नेम इज हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व वो वहां करेंगे। और तब
हम सब की आध्यात्मिक परंपरा जग जाएगी, हमारा उसके ऊपर विश्वास जग जाएगा और उसमें पक्के जड़ पकड़ते हुए हम जीवन के सारे क्षेत्र में विकसित हो सकते हैं। ऐसा निर्णय स्वामी विवेकानंद ने वहां लिया। फिर गए, अमेरिका गए। हम जानते हैं कैसे गए, जैसे टिपिकल क्या कहेंगे, भारत देश के लोग सबके ऊपर विश्वास करने वाले, जैसे हम अतिथि देवो भव कहते हैं वैसे ही उधर होगा। जैसे यहाँ भिक्षा मांगने से मिलती है वैसे भी उधर भी मिलेगी। इसीलिए उन्होंने शिष्यों को बोला, बस मेरे एक टिकट की व्यवस्था कर दीजिए, मैं वहां जाऊंगा, पेड़ के नीचे सोऊंगा, भिक्षा मांगूंगा, सर्वधर्म परिषद में सहभागी होऊंगा, वापसी टिकट से वापस आऊंगा। ऐसा सोचकर स्वामी जी गए। जाने के बाद पता चला ना भिक्षा मांग सकते हैं, ना पेड़ के नीचे सो सकते हैं, और रहना तो होटल में ही है। जिस सर्वधर्म परिषद के लिए आए वह डेट 2 महीना आगे चली गई, और उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, बोलना है तो, और वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी कोई परिचय पत्र चाहिए। ना हाथ में परिचय पत्र है, ना पैसा है, पैसा तो सिर्फ वापसी के टिकट का था। अब क्या करना है? कोई होता तो कहता मैंने प्रयास तो किया था लेकिन संभव नहीं, मैं वापस आ गया। लेकिन जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है ऐसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये स्वामी जी के जीवन से हम देख सकते हैं। यदि आपने कुछ ठान ली है उसके लिए डटे रहो, इतना डटे रहो, और अपनी अंतर शक्ति तो बढ़ानी ही है, डटे रहो तो ये पूरा विश्व जो है वो परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधी, परस्परावलंबी है। यदि आप पक्के डटे रहते हैं तो पूरे विश्व में बदलाव आता है और आपके लिए मार्ग प्रशस्त होता ही है। आज हमें समस्या क्या है? आपने जो सारे ABCD गिनाई जनरेशंस की, तो इसकी समस्या क्या है? हमें सारे इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। मुझे कुछ भी इंस्टेंट प्राप्त करना है। शायद इंस्टेंट फूड खाते खाते ऐसा हो गया है कि हमें सॉल्यूशन भी फास्ट चाहिए। आज की जनरेशन बहुत प्रामाणिक है, लेकिन ये जो एक हो गया है कि जो भी है तुरंत चाहिए। जीवन में हमें कुछ उदात्त प्राप्त करना है, जीवन में कोई सार्थकता होनी है, जीवन में कोई छाप छोड़नी है, तो हमें डटे रहकर काम करना है। और स्वामी जी, कम व्हाट में, आई शैल नॉट गो फ्रॉम हियर। सो वेरी डिफिकल्ट। उन दिनों में स्वामी जी पहले तो शिकागो में रहे। जब शिकागो महंगा है तो बॉस्टन गए। बॉस्टन जाते समय एक वृद्ध महिला ट्रेन में थी। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे, कहाँ रहेंगे? तो इन्होंने कहा मेरे पास तो कोई जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे घर आके रहिए। स्वामी जी को लगा चलो खाने का रहने का खर्चा समाप्त हो गया। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला रह तो सकते हैं, खाने का पैसा तो देना है। ऐसा नहीं है कि उनके घर रह रहे तो फुकट में खाना मिलेगा, और हाथ में तो पैसा वेग से समाप्त हो रहा है। कभी लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके, कभी उनके कपड़े खींचे, कभी उनको जंगली बोला। लेकिन स्वामी जी ने अमेरिका का वैसा भी दर्शन किया। अमेरिका के समाज की जो भी मानसिकता है उसको समझा, बहुत आत्मीयता से समझा। ऐसा नहीं कि उन्होंने इसके ऊपर गुस्सा किया, क्रोध में आ गए। बहुत बार हम बदले के मोड़ में जाते हैं। स्वामी जी ने ऐसा नहीं किया। और बाद में, कहानी लंबी है लेकिन हमें ज्यादा संदेश में जाना है। तो स्वामी जी, वो वृद्ध महिला ने तो इसलिए बुलाया था कि समय जाएगा, अच्छा विचित्र पोशाक किया है और अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, सो आई कैन कॉल माई फ्रेंड्स, वी कैन डिस्कस, मेक लिटिल फन ऑफ हिम। स्वामी जी राइट्स इन वन ऑफ हिज लेटर्स, आई एम बीइंग प्रेजेंटेड एज ए क्यूरियो बाय मिसेस केट सनबर्न। ऐसा वो लिखते हैं। लेकिन वो भी सहन किया, अपमान भी सहन किया। लेकिन जैसे मित्र आने लगे और उनको उल्टे सीधे प्रश्न पूछने लगे, और उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति की वैचारिक स्पष्टता तो इतनी अद्भुत है, और धीरे धीरे लोग उनके प्रशंसक बन गए। देन वन ऑफ देम टोल्ड, यू मस्ट मीट प्रोफेसर राइट, ही इज द राइट पर्सन whom you should meet. And then he met Professor Wright. Professor Wright said, Swami Vivekananda, you should participate in Parliament of Religion. Swamiji said, I don't have the letter of introduction. Professor Wright said, to ask you a letter of introduction is like asking the sun his right to shine. And then Professor Wright said, I will give you letter of introduction. He wrote a letter to Dr. Barrows, the organizer of
Parliament of Religion. In that he wrote that here is a man whose knowledge is more than the knowledge of all our professors put together. Mark the words. He is not saying his knowledge is more than the knowledge of all our professors of philosophy put together. He is not saying that. He is saying his knowledge is more than the knowledge of all our professors put together. और स्वामी जी को एंट्री मिल गई, पता मिल गया कहाँ जाके उनकी रहने की खाने की व्यवस्था होगी डेलीगेट्स की, ये पता चल गया। स्वामी जी गए, वो पता, और प्रोफेसर राइट ने कुछ पैसे भी दिए उनके हाथ में, गए। लेकिन दुर्दैव ऐसा था, उतरने के बाद उनके ध्यान में आया किसी ने उनके जेब से वो सब निकाल दिया। फिर से अभी कहाँ जाना पता नहीं, दरवाजा खटखटा रहे लोग, नीगर, ब्लैक डॉग, गेट आउट करते हुए दरवाजा बंद कर रहे हैं मुंह पे। आखिर आज शुरू होने वाली है। स्वामी विवेकानंद ने कहा जो भी ईश्वर की इच्छा है, मैंने तो सारे प्रयास किए, अभी जगत जननी जाने। ऐसा कहते हुए स्वामी जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सामने एक घर था, उस रास्ता पार करके, और उस घर से एक महिला बाहर आई बालकनी में। उन्होंने देखा कोई पोशाक करते हुए व्यक्ति बैठा है, वो आए और उन्होंने स्वामी जी से बोला कि स्वामी विवेकानंद, उन्होंने नाम पूछा, फिर बोली कि आइए मेरे घर। वहाँ नहाए, ब्रेकफास्ट किया, एंड शी सेड माई सेल्फ एंड माई हस्बैंड आर गोइंग टू पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, वी शैल टेक यू। और ऐसा करते हुए स्वामी जी वहाँ पहुँचे। और फिर जो हुआ वो इतिहास हम जानते हैं। स्वामी जी का जो भाषण था, इंट्रोडक्टरी भाषण था, बाद में तो उनके बहुत भाषण हुए। एक्चुअली ऐसा हुआ, लोग इतने क्रेजी हो गए कि रोज लोग रहने चाहिए करके, क्योंकि ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 11 सितंबर से 27 सितंबर तक थी। तो उन्होंने यानी वो ऑर्गेनाइजर्स बताते थे कि एंड में, आखिर में स्वामी विवेकानंद का भाषण होगा, तो वो सुनने के लिए सब लोग रुकते थे। इसीलिए स्वामी जी के बहुत भाषण हुए। मुख्य भाषण उनका 19 सितंबर को हुआ। तो 11 सितंबर का उनका सिर्फ जो वेलकम है, उसको जो प्रतिसाद करके जो छोटा सा भाषण है जो हम सब जानते हैं, वो भाषण उनका हुआ। लेकिन उससे ही लोग इतने मोहित हो गए और सारे लोग बाद में उनका हस्तांदोलन करने आ रहे। यहाँ तो अपने लीडर्स अपने बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, लेकिन वहाँ लोगों ने स्वामी विवेकानंद के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए। शिकागो में स्वामी जी बड़े प्रसिद्ध हो गए। यानी इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका का समाज, यानी पश्चिम का उस समय का सबसे सफल समाज को उन्होंने अभी कीर्ति के शिखर से भी देखा। एक अज्ञात, डिस्पाइज्ड व्यक्ति के लिए समाज कैसा दिखता है वो भी देखा, और वहां से भी देखा। और ऐसे स्वामी विवेकानंद ने, जब स्वामी विवेकानंद 3.5 बरस के बाद भारत आए, तो भारत ने भी उनका अद्भुत स्वागत किया। आप जानते हैं, राजा महाराजाओं ने उनको रथ पे बिठाते हुए उनके रथ खींचे। यानी अब स्वामी विवेकानंद ने एक फिर से यहाँ भी अतिशय ख्याति प्राप्त ऐसे व्यक्ति के नजरों से भी भारतीय समाज फिर से देखा। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति पूरे विश्व में होगा जिन्होंने दोनों समाज का दोनों दृष्टि से अनुभव लिया, तत्वज्ञान का पूरा अध्ययन किया, भारत में जो अनुभूति लेनी है वो अनुभूति भी ली। और जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के मन में सबके प्रति एक आत्मीयता थी, उनको नीगर, ब्लैक डॉग बोला गया, मुंह के ऊपर दरवाजे बंद हुए, लेकिन स्वामी जी ने जब वो खड़े हुए, उन्होंने क्या बोला? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। हमें ऐसा बताया जाता है कि स्वामी जी ने लेडीज एंड जेंटलमैन, बाकी लोग बोलते थे, स्वामी जी ने केवल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोला, इसलिए लोगों ने तालियां बजाई। उसके इतिहास में और 4 लोगों ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोला है, केवल स्वामी विवेकानंद के लिए तालियां बजी। क्यों? क्योंकि ये केवल शब्द नहीं थे, शब्द के पीछे वो अनुभूति थी, एक आत्मीयता थी। उन्होंने देखा जैसे भी लोगों ने व्यवहार किया, अच्छा या बुरा, लेकिन उन्होंने यही देखा कि मानव यानी अंतिम सत्य क्या है, मैं कौन हूं, ये जानने के लिए ही तड़प रहा है जो उसको पता नहीं है। और इसीलिए सबके प्रति एक आत्मीयता को लेकर ही स्वामी जी का व्यवहार हम देखते हैं।
और इसीलिए स्वामी जी ने जो संदेश दिया केवल भारत को नहीं दिया, स्वामी जी ने पश्चिम को भी संदेश दिया। तो पश्चिम को जो संदेश दिया वो थोड़ा देखेंगे और फिर भारत का थोड़ा विस्तृत देखेंगे। स्वामी जी ने पश्चिम को जो बहुत बातें बताई, 2-3 जो महत्व की बताई। एक उन्होंने बताई वेराइटी इज द प्लान ऑफ नेचर, यानी सारा एक जैसा हो ऐसा प्रकृति में, सृष्टि में संभव ही नहीं है। ये मेरा हाथ काम करता है क्यों? क्योंकि 5 उंगलियां अलग अलग लेंथ की है। यदि सारी एक जैसी होती तो इसकी शक्ति कम हो जाती। एक माँ के गर्भ में, गर्भाशय में बच्चा बड़ा हो रहा है, वो मांस का गोला नहीं होता, तो वो एक मानव शरीर होता है। क्यों होता? क्योंकि जब वो मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स का, तो किडनी सेल्स होते हैं, ब्रेन सेल्स यानी कुछ सेल्स ब्रेन सेल्स होते हैं, कुछ ब्लड सेल्स होते हैं, कुछ बोन सेल्स होते हैं, सारे होते हैं। लेकिन इन सारे विविध सेल्स को जोड़ने वाली एक चेतना होती है। इसीलिए हमें सृष्टि का, समाज का सत्य समझना है, तो जो विविधता है उसको स्वीकारो, उसका सम्मान करो, और इसको जोड़ने वाला जो सूत्र है वो भी समझो। यदि वो जोड़ने वाला सूत्र यानी एकात्मता को नकारेंगे तो केवल विविधता, ये अलगाववाद हो जाता है, ये एक दूसरों के विरोधी हो जाते हैं। या जैसे बच्चे का ही उदाहरण लेना है, तो शरीर तो अलग विकसित हुआ, लेकिन वो एकात्मता नहीं है तो वह मृत शरीर होगा। एक प्राण नहीं है तो वो मृत शरीर होगा, फिर उसमें विकास की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसीलिए हमें समाज का सत्य समाज समझना है, हमें इस अस्तित्व का सत्य समझना है, तो इन 2 बातों को समझना है कि विविधता रहेगी और विविधता का सत्कार करना है, उसका आदर करना है, और विविधता सामंजस्य से रहना है। तो उसको जोड़ने वाला जो तत्व है, जो एक तत्व है, जो एक चेतना है, उसको भी समझना है, उसकी अनुभूति करना है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने अपने एकदम शुरू के भाषणों में, यानी सर्वधर्म परिषद में ही, उन्होंने बताया कि यदि यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा सोच रहा है, कोई हिंदू ऐसा सोच रहा है कि पूरा विश्व हिंदू हो जाएगा, तो आई pity you from the bottom of my heart. यदि कोई क्रिश्चियन ऐसा सोच रहा है कि पूरा विश्व को हम क्रिश्चियन कर देंगे, तो स्वामी जी कहते हैं, ब्रदर दिस इज नॉट पॉसिबल, आई pity you from the bottom of my heart. यदि कोई मुस्लिम ऐसा सोच रहा है, ऐसा संभव नहीं है। अनेक विविधता होगी। ईश्वर जो अनंत है, अगाध है, उसको प्राप्त करने का क्या केवल एक मार्ग हो सकता है? अनेक मार्ग हो सकते हैं। अभी जैसे ये जो फेस्टिवल ऑफ आइडियाज यहाँ चल रहा है, सारे आप पहले दिन से यहाँ आ रहे, सुन रहे, आप हर एक को जाके बताइए कि अच्छा क्या हुआ, कैसा लगा। हर एक का जो फीडबैक होगा वो अलग अलग होगा, बल्कि आप सारे एक ही एक्सपीरियंस से गए हैं। ऐसा नहीं है कि स्पीकर ने कुछ लोगों के लिए अलग भाषण दिया और कुछ लोगों के लिए दूसरा भाषण दिया, एक ही भाषण दिया है, लेकिन फिर भी उसका जो फीडबैक होगा वो अलग अलग होगा। Because we always try to understand the reality through our own mental makeup, mental development, our understanding. अभी ये एक इतना छोटा सा 5 दिन के लेक्चर के लिए है, तो जो ईश्वर है, जो सर्वत्र है, अनंत है, अगाध है, क्या है ये भी हमें पता नहीं, इतना वो अगोचर है, उसके बारे में जानने का प्रयास केवल एक कैसे हो सकता है पूरे मानव जाति के लिए। यही स्वामी विवेकानंद ने वहां समझाया। और उन्होंने कहा, ये जो आग्रह है कि मेरा ही रिलीजन सही है, इसी के कारण आज तक खून खराबा हुआ है। जरूर आपके रिलीजन के बारे में अभिमान रखिए, उसका पालन कीजिए, लेकिन दूसरों को अपने तरीके से जाने का स्वातंत्र्य दीजिए, उनका भी आदर कीजिए। ऑल पाथ्स आर वैलिड, ये उनका पहला था डाइवर्सिटी को लेकर। फिर दूसरा जो उनका महत्व का संदेश पश्चिम के लिए था कि रिलीजन इज नॉट ए बिलीफ, रिलीजन इज नॉट बिलीविंग,
It is being and becoming. यानी spirituality is not a belief. Spirituality is experiential. जब तक आप अनुभूति नहीं लेंगे, हम कितने भी समाधि की दोनों चर्चा करें, उसमें कोई मतलब नहीं है. और मैं कहूंगी इस प्रकार से ही समाधि होती है, और ये कहेंगी नहीं नहीं उस प्रकार से ही होती है. हमने ली नहीं है, अनुभव ही नहीं लिया है. एक बार अनुभव मिलेगा तो झगड़ा ही समाप्त होता है. पता है मैं जिस मार्ग से जा रही हूं वो भी उधर जाता है, ये जहां जा रही वो भी उधर जाता है. अब ये एक्सपीरियंशियल कैसा होगा, क्योंकि वहां तो तब तक तो सारा यू बिलीव, यू कन्फेस वट एवर यूर मिस्टेक्स एंड देन यू फील रिलीव्ड एंड दैट्स ऑल. तो स्वामी जी ने कुछ लोगों को चुना, क्योंकि ये 3.5 years ही वॉज देयर, और उन्होंने उनको लेकर एक 1000 आइलैंड पार्क करके है, वहां एक जगह में उनके एक डिसाइपल की जगह थी, वहां कुछ दिन रहते हुए उन्होंने लोगों को योग सिखाया. योग यानी सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं, तो पूरा जो हम कहते हैं अपना यानी विचारों को, वृत्तियों का शांत करते हुए स्वस्वरूप की अनुभूति लेना. और वहां जो उन्होंने भाषण दिए वही राजयोग के रूप में प्रकाशित हुआ है. वो एकमेव पुस्तक ऐसा है जो स्वामी जी ने अपने आंखों से देखा है. बाकी सारा तो जो बोल रहे थे लोगों ने लिखा और वही पुस्तक हुए हैं. तो उन्होंने वहां ये लिया और वहीं से वेदांत सोसाइटी करके बहुत बड़ी मूवमेंट अमेरिका में शुरू हुई. आज भी बहुत सारी वेदांत सोसाइटी है. और ये जो वेदांत तत्वज्ञान स्वामी जी ने योग के माध्यम से लोगों को सिखाया, उसी का परिणाम है आज पूरे अमेरिका में जो भी सारे न्यू एज स्पिरिचुअलिटी पुस्तक है, चाहे वो केन विल्बर हो या स्टीफन कुवे हो या दीपक चोपड़ा हो या जो भी हो, ये सारे इसका बेसिस स्वामी विवेकानंद ने जो बताया था कि इट इज वन विच हैज मैनिफेस्टेड एज मेनी, इसी का ही प्रगटीकरण है. तीसरा उसका जो परिणाम है, 1984 में एक इलिनॉर स्टार्क करके है, उसने एक बहुत बड़ा पुस्तक लिखा 500 पेजेस का, और उस पुस्तक का नाम दिया है गिफ्ट अनओपन्ड. एंड शी सेज दैट टुडे व्हाटएवर प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, Swami Vivekananda had observed that and he had given solution to it. Unfortunately, he gave us the gift, but we have not opened it. And even today, what problems we have, Swami Vivekananda alone can guide us. ऐसा एक 450 पेजेस का बहुत बड़ा ग्रंथ गिफ्ट अनओपन करके उन्होंने लिखा है. स्वामी विवेकानंद ने भी यही देखा था कि भारतीय समाज कैसा है, तो उसके पास तत्वज्ञान है जो अस्तित्व के सत्य पर आधारित है. उसके पास ऐसी जीवन पद्धति भी है जो निसर्ग के साथ जाती है, जो विज्ञान के साथ जाती है, जो विज्ञान के जो लेटेस्ट डिस्कवरीज है उससे डरती नहीं है. ऐसी जीवन पद्धति है, ऐसा तत्वज्ञान है. बट द इंडियंस हैव लॉस्ट द सेल्फ कॉन्फिडेंस. नॉट ओनली दैट, the slavery of all these years have somewhat made people lazy, jealous, and also in a way considering oneself that I can't do anything, so not striving for anything, no dreams in life. This is what Swamiji saw Indian society. And how did he see the Western society? Develop science and technology at its zenith, then also considered as the most successful society. The whole that means Parliament of Religion was only part of a bigger celebration, which was to showcase how America, is at the zenith of development. That was the purpose of the whole thing. And it was 400 years of Columbus discovering America. That was the occasion. So, very confident, ऐसी Western society, but Swamiji saw that there is certain lacuna, shortcomings in its thinking. But because America is seen as successful, the fear is the rest of the world will follow the West. And if it follows the West,
we all are heading towards disaster. और इसीलिए पश्चिम का भी करेक्शन होना है. पश्चिम के जो अच्छाई है वो पूर्व ने सीखनी है. पूर्व का जो तत्व ज्ञान है उसके ऊपर विश्वास लेकर भारतीयों ने जीवन जीना है और वो पश्चिम को प्राप्त होना है. ऐसा स्वामी जी का पूरा विचार था. और इसीलिए जब वो भारत आए तो उन्होंने भारत में जो उनका संदेश दिया उसके हम बहुत महत्व के 6 बिंदु देखेंगे. Because this is not working, so I just wanted to see. So स्वामी जी ने स्वामी जी का जो संदेश था तो उसमें जो पहला बिंदु स्वामी जी says, if there is the greatest contribution that India can make to the world is contribution of vision of oneness. These are the words of Swamiji, vision of oneness. How do we view the whole world? We don't view it as separate, unconnected, but it is all connected with each other. It is, Ishvara is everywhere. And this is the basis. Today, we all know ecology has realized it. The the quantum physics has realized it. We are not unconnected. When they started studying, the subatomic particles, first they thought atom is indivisible. Then they found atom is divisible. Then what is the smallest particle? It is electron. Okay, electron is the unit of this whole universe. But they found even electron is made up of quark. Then what is quark? They started studying quark and they found that the quark, if a scientist is studying quark, whatever scientist thinks, accordingly the quark behaves. So the scientist said, hereafter, it means we have to understand the thinking of a scientist. That is the consciousness of a scientist. जितना सूक्ष्म जाते हैं उतना हम ये भौतिक अणु पाते ही नहीं हैं. जो कुछ है वो सारी चेतना है, चेतना का खेल है. ताओ ऑफ फिजिक्स करके एक फ्रिजॉफ कापरा का पुस्तक है और उसकी शुरुआत ही ऐसी है कि द होल वर्ल्ड इज ओनली इलेक्ट्रॉनिक फॉग and just a dance of these small particles is going on. They are called as incident. They appear, they disappear. And yet I see Mike as Mike, chair as chair. You are seeing me as Nivedita. We are all seeing solid things. How is it possible? Because they have no existence itself. More than nanoseconds. They appear, they disappear. And yet we are seeing the world. And that is where they say it means there is one cosmic mind and we are all part of that cosmic mind. And what Fritjof Capra says, the whole world is electronic fog. If you try to understand those small particles dancing and disappearing, it is nothing less than the dance of Nataraja. And the Nataraja statue is kept in CERN, a very biggest statue. CERN, where they study the behavior of the subatomic particles. How Swami Vivekananda influenced quantum physics, that itself is a great story, but I will tell only one incident. In one of the lectures of Swami Vivekananda in America, Nikola Tesla was invited. And this Nikola Tesla was a great scientist. So he was not interested. He said, all this philosophy and all, I am not interested. But the friend who invited, he was very close to him. So he said, okay, I shall come for 10 minutes. When he came, the hall was full, so he had to stand. He said, anyway, I had to stand for 10 minutes, I will go. But the way he got engrossed in the lecture, slowly, after the lecture, question answer, and the time went on, for 2 hours, Nikola Tesla was standing. Then later he went and he interacted with Swami Vivekananda. And he said, I shall prove matter and energy are one and the same, and they come from some substratum, which may be the consciousness. So he started studying Vedanta, and there are so many such scientists who got the trigger for further research in study of Vedanta.
And for that they were motivated by Swami Vivekananda. So whether Vedanta, whether yoga, it was Swami Vivekananda who introduced in West first time. So in India, Swami Vivekananda says that this fact we forgot. We only talk, but then my own people are suffering and I don't care for them. So what Vedanta we are talking? Vedanta is no more practical in our life. It is, we are all connected with each other. So the expanded form of a man is family. Still expanding form of a man is society. Still expanding form of a society is nation. Then the nature and the whole universe. We are not separate from each other. It is something like to understand, because body is the best example of one and many. So this is the finger. The expanding form of the finger is the palm. This finger is useful only as long as it is connected with the palm. If it is away from the palm, it is of no use. That is why its expanded form is this palm. ये हथेली का जो और विस्तारित स्वरूप है वो हाथ है. हाथ का विस्तारित स्वरूप शरीर है. और यह विस्तारित स्वरूप के प्रति अपना कुछ कर्तव्य होता है. वो कर्तव्य निभाना है. भारत ने अपना कर्तव्य निभाना हम भूल गए. हम परिवार तक निभाते हैं. हम ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिटी तक निभाते हैं. हम समाज तक निभा नहीं रहे हैं. हम राष्ट्र तक निभा नहीं रहे हैं. इस भारत राष्ट्र का कोई प्रयोजन है ये भी हम भूल गए. और इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि द नेशन डिग्रेडेड. स्वामी विवेकानंदा's one very remarkable thought is the truth does not pay homage to society. Society has to pay homage to truth or perish. Truth does not pay homage to society. यानी लोग स्वार्थी हो गए हैं. उनको व्यक्तिवाद ज्यादा अच्छा लगता है. इसीलिए हम व्यक्तिवाद से जिएंगे तो समाज की सुरक्षा होगी. ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सत्य क्या है अस्तित्व का? हम सब परस्पर जुड़े हुए, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी है. और इसीलिए हमारा जीवन जो है वो हमारा जो विस्तृत स्वरूप है, परिवार, समाज, राष्ट्र, सृष्टि और मानव समाज, पूरा विश्व ही है, इन सब के हित में जीना है. ये हम भूल गए. एंड इसे दैट्स व्हाई स्वामी जी सेड वी डिग्रेडेड. The second thing he again and again reminded is each soul is potentially divine. The goal of life is to manifest that divinity by controlling the nature, external and internal. आज हम भूल गए हैं. मैं कुछ दिन पहले ही कुछ युवाओं के साथ इंटरैक्ट कर रही थी. हम AI पे आ गए. फिर वो एक युवती बता रही थी कि मैंने पूछा कि आप AI का किस किस में उपयोग करते हैं. और ऐसा करने से that is very useful tool, but your original thinking you should not lose. Your rigor in study you should not lose. आज तो हम कुछ भी AI को दे दे, वो हमें रेडीमेड पेपर दे देता है. तो मैं उसको पूछ रही थी. She says no, it is very useful. Even for my emotional support, I take support of AI. तो मैंने कहा कैसे? AI का कैसा सपोर्ट लेती है? तो बोले मुझे कुछ प्रश्न पूछना है, मैं माँ पिताजी को नहीं पूछ सकती. मेरे मित्रों को पूछूंगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे. यानी मेरे इमोशनल जो कुछ अप डाउन हो रहा है इसके बारे में. इसीलिए मैं AI को प्रश्न पूछती हूँ. मैंने कहा अच्छा किसको पूछती है? मेटा को पूछती है या ग्रोक को पूछती है या चैट GPT को पूछती है? किसको पूछती है? तो बोले नहीं, मैं तो मेटा को पूछती हूँ. तो मैंने कहा अच्छा मैं एक प्रश्न पूछूं कि तुम मेटा को प्रश्न पूछ रही, मेटा तुम्हें जवाब देता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे आंखों में आंसू आए तो मेटा तुम्हारे आंसू पोंछ सकता है क्या? जब मैंने ये प्रश्न पूछा वो जोर जोर से रोने लग गए. यानी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. फिर मैंने उसको थोड़ा सांत्वना दी. फिर मैंने कहा कि देखो इसका सब उपयोग करना है, बट ऑलवेज विथ आवर ओन इंटेलिजेंस. Ultimately, your real worth, your real peace, your real strength, confidence is within you. If you think you can, you can. So, believe in yourself. Don't go and ask. And do you know that
ultimately, what is AI also? What you have made that AI, you have fed that, made it, read it, or whatever is available, in the internet, the AI searches that, and from that it gives you the answer. But the real answer may not be available in the internet. And AI cannot study that and give you the answer. So she started thinking. Now that is the problem. The real believing in oneself. Today, our yuva needs that sort of training, and if we give, we see how they shine, because they are really sincere. The experience of Vivekananda Kendra with the youth is, you take the message of Swami Vivekananda to them in a right way, in interesting way, and they respond like anything. So we have camps of 400, 500 youth at a time. We take their mobiles and the camp is conducted. Some youth come, they say, I can't sleep without mobile. So I need a mobile with me. I may not be able to stay without mobile. But after 5 days, 10 days, they say that I thought I could never stay with mobile, but you have given me that experience that I am master of myself. That confidence. See, the peace, the happiness is not outside. No one else can control my happiness. Just because someone speaks nicely to me, I am happy. Someone does not look at me, I am unhappy. It is not that. We ourselves are happiness. And that experience, ultimately, a human being has to take. So that training of body, mind, intellect, today that is not part of our education. Swami Vivekananda says very beautifully that ultimately what is education? It is to learn about how to learn. So train your mind. Concentration. Any subject, how to study, how to focus, how to take the gist, how to generalize, how to apply in life. We don't know. We are not learning that. There are many things about education, but I am not going into that. But this one truth, that all happiness is within me. My happiness does not depend on how others are talking to me. But others are behaving like that, people tell. Swamiji says, any progress, even in species or even in human life, has come when we desired and worked for that. So, it means the change has come when I brought the change in myself, not in others. Always we bring change in ourselves when it is concerned with atmosphere or animals. But when it comes with human beings, who should change? Others should change. I am not ready to change. And then we suffer. Why he is behaving like that? Why she is behaving like that? So today's relationship is a big issue for everyone, whether youth or elderly. It is all because of those expectations. See, in weather, if it is hot, we put AC, we put on fan. We bring change in ourselves by putting on something. If it is cold, we put on sweater. If I am going on the road, very narrow road, and a big bull is coming, I don't say that, see, I am Vice President of Vivekananda Kendra, so the bull should give me a way. I don't say that. When the bull is coming, I may be anything, I run away. And because very big bull and very narrow road. So in whom we bring the change? I bring change in myself. But when my friends, my relatives are behaving something, we keep on grudging. He is like that, she is like that. No, we have to bring change in ourselves. Elevate yourself. Learn how to deal with such relatives, friends around. And that is where slowly we grow spiritually. So, always focus on yourself. What is spirituality? Start with yourself. Svabhavodhyatma muchyate. Just one word of definition. One word definition of spirituality. In Bhagavad Gita, 8th chapter, Bhagwan Sri Krishna gives. So this, each soul is potentially divine. All the power, happiness, peace, everything is within me. Actually, I am that. And that I had to experience. So for that, what is to be done?
We all talk, we are the land of yoga, and we gave the proposal, and then International Yoga Day started, and all that we talk. But how much yoga is there in our life? It's not only asana and pranayam. Every day, at least 5 minutes meditation. Each one of us, we sit and we tell, I am not this body, mind, intellect, but I am Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. There are yama and niyamas. Do we know what are those yama niyama? And for yama, Patanjali says, these are mahavrata. Ete jati desha kala samayan avachinnaha sarvabhauma mahavrataha. ऐसा हमारा जीवन होना है. यानी योग योग बोलने से कि योग इंटरनेशनल योग डे के दिन बहुत अच्छा हमने एक कार्यक्रम किया आसन प्राणायाम का, ये सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा नहीं है. सच में वो योग हमारे जीवन में दिखना है. एकात्मता पर आधारित परिवार कैसा होता है? पर एकात्मता यानी आत्मीयता. आत्मीयता पर आधारित कोई संस्था कैसी होती है, कोई शिक्षा संस्था कैसी होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसी हो सकती है, कोई सरकार कैसी हो सकती है, कोई गांव कैसा हो सकता है, कोई हाउसिंग सोसाइटी कैसी हो सकती है. इसके उदाहरणों से ही विजन ऑफ वननेस कैन बी इनकलकेटेड इन अदर्स, नॉट बाय लेक्चर ऑन दैट. सो the biggest challenge that Swami Vivekananda has given us is of practical Vedanta. The message of India is vision of oneness, and that oneness is to be reflected in all our lives, whether individual life, collective life. Collective life means different collectives. So this is one of the biggest message. Another very important contribution of Swami Vivekananda message is, about nation. It was he who differentiated between state nation and cultural nation. State nation is which is associated politically, some government rules, but the cultural nation is it has a certain worldview, certain philosophy, certain things to contribute for the progress of the humanity. And India is such a cultural nation. Swami Vivekananda spoke he came to India back after America in 1897. 3.5 years he spoke there. And now, I think it was in 2004, Samuel Huntington, the topmost defense analyst of America and the director of John Olin Institute for Strategic Studies of Harvard University. He wrote a book, Clash of Civilization. And there he says civilization is where there may be more political units, but it has some specific worldview, specific values, and something to contribute for the humanity. And he, classified the whole world into 9 civilizations. India, he calls it as Hindu civilization. It is a civilizational nation. सांस्कृतिक राष्ट्र है भारत. और स्वामी विवेकानंद ने हम जो राष्ट्रबोध हम में से चला गया था, ऐसा नहीं है ब्रिटिशों ने हमें राष्ट्र क्या है सिखाया है. वेदों में राष्ट्र सूक्त है, हमारी राष्ट्र की संकल्पना है, हमारे वो जो मंत्र होता है उसमें भी राष्ट्र की बात होती है, जो हम हर पूजा के बाद कहते हैं. ऐसा राष्ट्र के बारे में हम भूल गए थे, हम भी भारत को नेशन स्टेट समझने लग गए थे. ऐसे समय स्वामी विवेकानंद ने 2 प्रकार से हमें जगाया, मैसेज दिया. एक तो उन्होंने कहा कि ये सिविलाइजेशनल नेशन है, और इसीलिए आप यदि विविधता भारत की देखेंगे तो आपने ऐसे शब्द सुने हैं ना कि इंडिया इज ए कॉन्टिनेंट ऑफ मेनी नेशनैलिटीज. इट्स नॉट मेनी नेशनैलिटीज, इट इज वन नेशन. और ये सारा यानी हम दिखने के लिए कितने भी अलग अलग हो. एक बार मुझे एक प्रोफेसर इंद्रजीत डे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिट्स पिलानी के, बाद में उन्होंने रांची में जाके बहुत काम किया, अभी कुछ बरस ही वो गए. उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा, बहुत बरस पहले, 40 बरस पहले की बात है. उन्होंने कहा कि एक गुजरात का व्यक्ति
और एक अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति, इन दोनों में समानता क्या है? हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक राष्ट्र है? उनके कपड़े अलग है, खाने का तरीका अलग है, घर बनाने का तरीका अलग है, भगवान का नाम अलग है। वहां दोन्नी पोलो कहते हैं, रंगफरा कहते हैं, जीत आने कहते हैं, किन्ने नाने कहते हैं, यहां हम राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जो भी यहां हम नाम है। फिर भाषा अलग है, उत्सव के नाम अलग है। आप कैसे कहेंगे कि एक राष्ट्र है? और उस समय मैंने स्वामी जी का इतना अध्ययन नहीं किया था, तो मैं भी सोचने लगी कि सच में हम कैसे कह सकते हैं ये एक राष्ट्र है, इतना सब कुछ अलग है। लेकिन जब स्वामी जी को पढ़ने लग गई, स्वामी जी ने हमें बताया व्हाट आर द कॉमनैलिटीज इन ऑल ऑफ अस, वॉट एवर वी मे, विच एवर लैंग्वेज वी मे टॉक, विच एवर गॉड वी मे वर्शिप। और स्वामी जी ने जो बताया वो कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म में हम सब ने पढ़ने जैसा है। मैं सिर्फ गिनाऊंगी उसको। और स्वामी जी ने पूरा कोलंबो टू अल्मोड़ा यही बताया कि दिखने के लिए हम कितने भी अलग अलग हो, हम किसी को भी पूछिए पूरे भारत में ईश्वर कहाँ है? ईश्वर सर्वत्र है। वी आर बॉर्न, वी लिव, वी डाई इन ईश्वरा, देयर इज ओनली ईश्वर। ये पहला। दूसरा, यह सृष्टि जो है वो अनादि है, वो अनंत है, वो लीनियर नहीं है। एक दिन सृष्टि आई और एक दिन समाप्त होगी, ऐसा हम नहीं कहते हैं। आप कहीं भी जाइए, किसी भी जनजाति को भारत में जाके पूछिए, प्रलय होगा, वो सूक्ष्म रूप में जाएगी, फिर से प्रकटित होगी और ये चलता रहेगा, ये चक्र चलता रहेगा। फॉर अस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज साइक्लिकल, नॉट लीनियर। तीसरा, हम ये नहीं मानते कि शरीर समाप्त होने के बाद हम समाप्त होते हैं। कहीं भी पूरे भारत में जाइए, हम ये नहीं मानते हैं। बाकी डिटेलिंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉमन बिंदु ये है। चौथा, हम कहते हैं कि शरीर जाने के बाद भी जो कुछ रहता है वही मेरा स्वस्वरूप है, वही आत्मा है, आत्मस्वरूप, और उसकी कोई मृत्यु नहीं है, और वो नित्य शुद्ध बुद्ध है। Swamiji was so proud of this principle. Even in America, he says, the most distinguishing feature of our civilization is, we say, the man is immortal. Not the body, mind, intellect. They are only our instruments. ये हमारे साधन है। आज है, कल दूसरे आएंगे, लेकिन मैं कौन हूं ये जानने तक हम अनेक जन्म लेंगे और आखिर उसको जानेंगे। उसकी मृत्यु नहीं है। फिर वो आत्मा ईश्वर से अलग है या ईश्वर का अंश है या आत्मा ही ईश्वर स्वरूप है, ये सारा द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत और बाकी अनेक दर्शनों का चर्चा का विषय है। कॉमन बिंदु ये है कि आत्मा ये अमृतमय है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, ये अमृतस्य पुत्राः के बारे में स्वामी विवेकानंद बार बार उसको ठोकते थे। तो वो चौथा। पांचवा जो है कि हम कर्म पे सिद्धांत, कर्म पे विश्वास करते हैं, जो हम फिर से भूल गए हैं कि जो भी है मैं मेरे कर्म से प्राप्त कर सकती हूँ। और स्वामी विवेकानंद का मैसेज तो इतना पावरफुल है, वो कहते हैं ईश्वर जब सर्वत्र है देन वर्क इज वर्शिप। वो ऐसा नहीं कहते हैं वर्क एंड वर्शिप, वो ऐसा भी नहीं कहते हैं वर्क एज वर्शिप, वो कहते हैं वर्क इज वर्शिप। हम जो भी कर रहे हैं ईश्वर की पूजा है। और आप देखिए भारत में, मैं ओडिशा के एकदम इंटीरियर गांव में गई थी, वो घर में ऐसा पोतते हैं ना गोबर और मिट्टी से, उसको भी सुंदर डिजाइन बनाते हैं, फिर उसके ऊपर चित्रकारी करते हैं। हम चप्पल भी बनाएंगे, उसमें चित्र करेंगे। एक शरीर पोंछने का छोटा सा गामोसा असम में वो बनाते हैं, उसमें सुंदर सुंदर चित्र बनाएंगे। हर घर में गामोसा बनता है। हम जो भी करेंगे ईश्वर को समर्पित करते हैं, करते थे बोलना पड़ेगा अभी। ये भारत की विशेषता थी कि मेरा काम मुझे कोई देख रहा है इसीलिए मैं अच्छा करूंगी,
ऐसा नहीं है, मेरा हर काम ईश्वर को समर्पित है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः। ये भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया है। एक बेलूर करके जगह है कर्नाटक में, आपने सुना होगा, बहुत सुंदर शिल्पकला है। तो उसका जो शिल्पकार मंदिर बना रहा था, तो जो प्रदक्षिणा करते हैं ऐसे पीछे जाकर ऊपर का जो पत्थर है, तो पीछे अंधेरा ही था, यानी अंधेरा ही रहेगा उधर, तो पीछे के ऊपर का जो पत्थर है उस पे भी उसकी सारी शिल्पकला चल रही थी। तो किसी ने पूछा, यहाँ कौन देखने वाला है, यहाँ इतना सुंदर पत्थर क्यों लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं और ये मेरी ईश्वर को पूजा है। तो कोई देखे ना देखे, आज ये एक भी हमारे जीवन में आ जाएगा। हम जो भी करेंगे ताकत से करेंगे, पूरी शक्ति लगा के करेंगे। हम समय को देखते हुए अभी मेरा समय हो गया अब मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं, उसका आनंद लेकर करेंगे। हनुमंतराव गायकवाड़ का आपने पढ़ा होगा, उन्होंने ऐसा ही काम किया टेल्को में, धीरे धीरे बहुत आगे गए, अभी तो उनका बहुत बड़ा ग्रुप है। तो ऐसा मेहनत करने का स्वभाव। मैं कुछ दिन पहले IIT खड़गपुर में थी, तो वो डायरेक्टर एक मीटिंग ले रहे थे कुछ इमिनेंट लोगों की, तो वो उनको पूछ रहे थे, आप आपके सुझाव दीजिए, हमारा IIT और बेस्ट कैसे होगा, पहले 100 में कैसे आएगा। तो लोग बता रहे थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़नी चाहिए, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स लेटेस्ट होने चाहिए, वगैरह वगैरह। ये इतना वेल कनेक्टेड नहीं है खड़गपुर, हो रहा था, सारे अच्छे सुझाव थे, लेकिन मुझे लगा कि ये सुझाव सेकेंडरी है। तो मैंने डायरेक्टर को, जब मेरी टर्न आई, मैंने उनको बताया कि आई फील व्हाट वी लैक इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज रीगर इन स्टूडेंट्स एज वेल एज इन फैकल्टीज। एक व्यक्ति बता रहा था कि वो IAS स्टूडेंट्स को, यानी जो IAS पास हो गए, तो उनका ट्रेनिंग में कुछ, यानी एक ट्रेनर, इंटरनेशनल ट्रेनर, सो ही हैड गॉन टू टेक सेशन, सो ही वाज टेलिंग, एक व्यक्ति ऐसा बैठा था, एक ट्रेनी, तो इन्होंने उनको पूछा कि यू आर नॉट नोटिंग डाउन एनीथिंग? ही सेड, अब क्या करना है, अब तो हो गया IAS, यानी मैं IAS हो गया, अभी मुझे कुछ सीखना ही नहीं है। आज हमारे राष्ट्र में यदि किसी चीज की कमी हुई है, हम कर्म को भूल गए। हम अपने अंदर सारी शक्ति है, यदि मैं सोचती हूं तो मैं कर सकती हूं, इस पर का हमारा विश्वास चला गया। आज भी हमारे लिए ये स्वामी जी का संदेश, और स्वामी जी के शब्द ऐसे है, जैसे रोमा रोला ने कहा था कि यदि आप बैठ के पढ़ रहे तो आप उठकर खड़े होते हैं, ऐसी ताकत है उन शब्दों में। लेकिन हम ये कर्म ये भूल गए। तो ये एक कॉमन पूरे भारत में था, एक्चुअली पूरे आशिया में है। एक कर्मा कैपिटलिज्म करके आप इंटरनेट में डालेंगे तो आपको एक लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक जो अमेरिका में चल रहा है कर्म सिद्धांत को लेकर, इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। और छठवां उन्होंने बताया कि धर्म यानी रिलीजन, क्योंकि स्वामी जी अंग्रेजी में बोल रहे थे, उन्होंने रिलीजन शब्द का उपयोग किया। तो धर्म जो है वो अनुभूति का है, वो करने का है। तो जो भी हम कर रहे हैं उसकी अनुभूती लेकर करना है। जाणीवेच्या स्तरावर जाऊन काम करायचं, वरवर वाटलं म्हणून रडत राहू, काय करणार, आलाय माझ्या नशिबी हे काम, असं करून काम नाही। मी इथे कुंभमेळ्यात गेली होती, तिथे केंद्राचंही शिबिर लागलंय, तर त्या शिबिरामध्ये एक पोलीस ऑफिसर भेटले, म्हणजे बरेच जण भेटले, तर त्या आल्या होत्या कशा तरी कामासाठी। मग मी त्यांना विचारलं की आता संपत आलं, हो म्हणे, बस और 4 दिन, सिर्फ 4 दिन, इतना काम, बाप रे हम तो थक गए, इतने लोग आते हैं, इतने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे पता नहीं, ऐसा लगता है कि अब ये चले जाए, अभी आना बंद हो जाए। वो थक गई थी, और ये सच में है, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रेन हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं। फिर बाद में मेरे साथ एक पुलिस आया था, क्योंकि मुझे कुंभ नगरी से बाहर निकालने के लिए बहुत जाम था। तो मैंने उनको पूछा कि आप सब लोग तो बहुत थक गए हैं ना? तो उसने कहा, नहीं मैडम, थकने का क्या है, आखिर गंगा मैया की सेवा है। ये अप्रोच है। आज हमारे जीवन में हम रोते रहते हैं, सारा काम मुझे ही आता है,
अरे मुझे ही आता है क्या है, तुम कर सकती हो इसलिए आता है। जैसे कर्तव्य की जो बात है ना, मैं हमेशा कहती हूं कर्तव्य कभी दूसरों से तुलना करके होता नहीं है। ये इतना काम करती है तो मैं भी इतना करूंगी। मैंने कहा शरीर में यदि ऐसा होने लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये हृदय बोलेगा ये हाथ और पांव को तो रात भर आराम मिल जाता है, मुझे तो 24/7 में चलता रहता हूं, तो मैं भी थोड़ा 5 मिनट का आराम कर लेता हूं। ये होगा नहीं। तो हर घर के, संस्था के, समाज के ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हृदय है, और यदि उनके पास काम आ रहा है वो आनंद से करेंगे तो धीरे धीरे। बट वी आर नॉट डूइंग दैट। And spirituality is not a subject like, I teach spirituality. Spirituality is always radiated. It is always transmitted only when I live it. So, it has to be in our life. और स्वामी विवेकानंद ने हमें बताया कि ये इस राष्ट्र का कार्य है, और उसके लिए हमें इस राष्ट्र का पुनरुत्थान करना है। और इस पुनरुत्थान के कार्य में उनका सबसे पहले जो विश्वास था वो तो युवाओं के ऊपर था। वो कहते थे, फ्रॉम द यंगर जनरेशन विल कम माय हीरोज हु विल वर्क आउट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स लाइक लायंस। स्वामी जी का जब वो अमेरिका में थे, यानी पता नहीं वो सर्वधर्म परिषद में सहभागी हो सकते हैं या नहीं, उस पत्र में वो लिख रहे हैं, आई मे डाई ऑफ कोल्ड एंड हंगर। ऐसे स्थिति में जब थे, वो पत्र में लिखा है आई मे डाई ऑफ कोल्ड एंड हंगर। उसी पत्र में आखिर वो लिखते हैं आला सिंगा पेरुमाल को कि जो भी है, बट अपना सपना हमने भूलना नहीं है। 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with the eternal faith in Lord, nerved to the lion's courage by their sympathy। ये courage क्यों आ रहा है? By their sympathy for the poor and the fallen and the downtrodden, shall go to the length and breadth of this land, preaching the gospel of equality, gospel of social raising up। ऐसे युवा ही है जो फिर से चित्र पलट सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी चर्चा हो रही थी कि ये क्लीनलीनेस आएगा कैसे, तो बार बार नई पीढ़ी इसके ऊपर कार्य करती रहेगी। 2 पीढ़ियों में भारत स्वच्छ होगा। बस भारत को वही एक करना है, बाह्य शुद्धता, आंतरिक शुद्धता। तो यह युवाओं के ऊपर जो स्वामी जी का विश्वास था, स्वामी जी बड़े स्ट्रांग थे। वो कहते थे, आई लव यू सो मच, युवाओं को लिख रहे, बट आई वुड लाइक यू टू डाई वर्किंग फॉर अदर्स, बिकॉज द लाइफ इज शॉर्ट and the vanities are many, but they alone live who live for others, the rest are more dead than alive. Why? Others are not others, they are my own extended form. Suppose a small child is growing up, only his legs are growing, other body is not growing, it's not a growth. His whole body should grow. So my whole body is my family, society, nation and the whole world. So I should work for that. Therefore he says, they alone live who live for others, the rest are more dead than alive. Yes, I have family, I will take care of family. I have my business, I have my job, I will take care of that. But every week, my 2-3 hours, 4-5 hours, can I give for the society without expecting anything? Just imagine if all Indians start doing that, so much energy will be available. We can really have national regeneration. और 2 बिंदु स्वामी जी ने कहा था, सर्व मैन सर्व गॉड, यानी आज हमें सेवा कार्य आवश्यक है। जब हम कहते हैं राष्ट्र का पुनरुत्थान, कुछ समाज आगे जा रहा है और कई लोग पीछे हैं, ना उनको शिक्षा प्राप्त हो रही, ना आत्मविश्वास प्राप्त हो रहा। ऐसे स्थिति में राष्ट्र आगे नहीं जा सकता है। इसीलिए ऐसे जो पॉकेट्स है वहां हमने कार्य करना है, सेवा कार्य करना है। और जो दूसरा बिंदु बहुत महत्व का है कि अल्टीमेटली एनी चेंज यू कैन ब्रिंग इन अदर्स बाय ब्रिंगिंग चेंज इन योरसेल्फ फर्स्ट, and second
by loving and accepting the society, the people as they are. आत्मीयता से प्रेम करना, अपनेपन से लोगों के पास जाना. लोग कभी गालियां देते हैं, सहन करना. स्वामी विवेकानंद को जोसेफाइन मैक्लियोड ने पूछा कि स्वामी जी, व्हाट शैल वी डू फॉर यू? स्वामी जी सेड, लव इंडिया एज शी इज. I don't want a single word of criticism about her from you people. स्वामी जी स्वयं ऐसे थे. अमेरिका में गए, उन्होंने भारत के बारे में कभी भी एक शब्द भी उल्टा सीधा नहीं बोला. लेकिन भारत आए तो हमें जगाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रहार किए, लेकिन इतने आत्मीयता से किए, इतने प्रेम से किए कि आज भी लोग उनको याद करते हैं. जब उनका स्मारक कन्याकुमारी में बनना था तो लोगों ने 1-1, 2-2 रुपया देकर 85 लाख रुपया 1960s में इकट्ठा हुए. और सारे राज्य सरकार, जिस भी पार्टी की सरकार हो, सारे राज्य सरकार ने इसके लिए 1-1 लाख रुपया दिया. स्वामी जी सच में इस भारत की आत्मा के रूप में हमें जगाने आए. और इसीलिए स्वामी विवेकानंद का जो संदेश है, जो इलिनॉर स्टार्क ने लिखा, द गिफ्ट अनओपन्ड, आई फील इवन वी हैव नॉट ओपन्ड फुल्ली. Even we need to open it in our life. This is not an ordinary nation where we have born. It has a great historical purpose. To fulfill that purpose, we have to elevate our life. Unless we are people of evolved consciousness, we cannot guide the humanity. Yes, nation has to be developed, infrastructure has to be there, but that is not the only purpose of the nation. Ultimately, that is the work of the government. But the real work of the nation is that we live and we practice and we radiate the great spiritual principles to the whole world. So with that, I conclude. Thank you. Dhanyavad, Nivedita ji. I think it was 1 hour of lost in thought in a transcendental manner. And it's time now for the question and answer session. So from audience, anybody having question, the mic will be brought to you. Welcome, Nivedita ji, to Goa. We call it the land of Feni, Konkani, where Amar, Akbar, Amrinder, Anthony live in harmony. Madam, this question I'm asking you manifests from something I asked a Catholic priest also. I asked the Catholic priest, if Jesus was there today, would he support the Palestinians and the Kashmiri Pandits, which I felt he would. My question to you, madam, comes from the spirit of Sarva Dharmastha. मी 6 वर्षी नासिकला होता. मराठी पण थोड़ी येती आहे, पण अपनी हिंदी अपने आपके खंदे पे खंदे नहीं मिला सकता हूँ सर. मैडम उसके लिए अंग्रेजी में बात करता हूँ. My question to you, madam, is I'm a supporter of the Kashmiri Pandits as well as the Palestinians. Would Swami Vivekanand ji, if he was living today, support the Palestinians and the Kashmiri Pandits? Thank you. Introduce yourself, please. My name is Mac Vaz. Liquor is my business. I'm also the honorary committee member of the Kosambi Festival of Ideas. Okay. Thank you. See, Swami Vivekananda was always a person who will go to the roots. So even he used to say, I am a root branch reformer. So he would go to the root of why this problem, why the Kashmiri Pandits or Palestinians got displaced. Going into that why only, he had answered it in his lectures at Chicago. That it is the exclusive approach, saying only my religion is true and yours is wrong. It is that which has led to all the clashes. So somewhere we have to accept the world is diverse. There will be various names and forms of God, different people will be following. And it is right for them. What I am following
is best for me. Unless this is accepted in humanity, what has happened in Kashmir or happening in Palestinian will continue to happen. Next question. Introduce and keep the question short. Yeah, Shraddheya Nivedita ji, I have been associated with Ramakrishna Mutt for a long time, and I am an HR professional. I have been working with students and other people. My question is... Where are you? I am not able to see. Okay. Okay. I did not want to obstruct the camera views. No, please sit down. Okay, I couldn't make out. It's all right. So, if you see, it's not only, as you said, the spirituality is not just knowing, it is being, right? And from being human, we have to be human beings. So if we see today's world, everywhere there is so much of divisiveness. Everywhere there is so much of division. There is no unity. Even in our country, even in our own religion, even within the states, either on basis of language and caste or creed, there is so much of division. So how do we carry the message of Swami Vivekananda to the larger audience? And how do we keep the youth ahead on this path? That is what we have to learn, to see what connects us. Unless we learn that, we cannot come together. If we are always focusing only what is different in me and you, that will only separate us. See, that differences or diversity is not separateness. It's only a way of manifestation. Once we understand that, and the manifestation is from the same source, once it is understood, then when I look at other, I will only see what connects me to that person. So only Swamiji focused on commonalities continuously. Swami Vivekananda, when he spoke in Chicago for all the days, from 11th to 27th, he not even once took the name of Sri Ramakrishna Paramahamsa. Not even once. That doesn't mean he had no respect in him. Actually, he used to say, what am I? I am nothing. मिट्टी के ढेले से ठाकुर हजारों विवेकानंद निर्माण कर सकते हैं. ऐसा ठाकुर के बारे में बोलने वाले स्वामी विवेकानंद ने वहां कभी रामकृष्ण का नाम नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो रामकृष्ण का नाम लेते, then he will be representing only those who are following Ramakrishna. But he was there to represent all of us. So he never took the name. So ये जो अभिनिवेश आ जाता है ना कि मेरे ये गुरु, मेरे ये, और उस अभिनिवेश में ही हम ज्यादा झगड़ा करते हैं. तो वो कम करना होगा. और इसीलिए, और इसका सॉल्यूशन ये भी नहीं है कि इन सबको छोड़ दो, फिर तो हम we will get uprooted. We will not be connected to the roots. And being more materialistic and individualistic is not going to solve the problem. It has not solved the problem of America or West. They are struggling. Disintegration from the nature, from the society, from the family, within man. Even body, mind, intellect are not together. Man wants to sleep, he cannot sleep. So the drugs are required. So that will happen. What Swamiji told, no, the truth does not pay homage to society. The society has to pay homage to truth or perish. तो वह जो ट्रुथ है एकात्मता का, हम सबको जोड़ने वाला, वह कॉमनैलिटीज क्या है उसमें आना है. और एक ही अनेक रूप से हुआ है. ये आज साइंस ने सिद्ध किया है, ये पर्यावरण ने सिद्ध किया है. वो छोटे छोटे केचुए वो भी हमारे लिए आवश्यक है. वो मधुमक्खियां वो भी हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है. आपने सुना होगा, यदि सारी मधुमक्खियां एक दिन में गायब हो जाती है तो हमें खाने के लिए 1-2 बरस में कुछ मिलेगा ही नहीं. पूरी मानव जाति समाप्त होगी. इसीलिए हम सब जुड़े हुए हैं ये पर्यावरण से, तो हमें ओवरऑल पता है. बट इवन इन ऑल द ग्रीन मूवमेंट्स दैट आर गोइंग ऑन इन यूरोप,
There also lot of thinking is there. That just a green movement, utilitarian approach, save the earth. It's not save the earth, it is save the human being. अर्थ वही रहेगी, अर्थ कहीं जाने वाली नहीं है. अभी भी हम ढोंगी होकर ही बात कर रहे हैं. हमें खुद को बदलना है. तो ये जब तक मैं सृष्टि का अंग हूं ये समझेगा, तब मैं सृष्टि का शोषण करना कम करूंगी. मैं समाज का अंग हूं ये समझूंगी, तो अंग तो विविध होते ही है, तो मैं समाज की विविधता को मान्य करूंगी. मैं परिवार की अंग हूं, तो परिवार में भी विविधता होती है. तो यह अंगांगी भाव बोलिए, एकात्म भाव बोलिए, आत्मीयता कहिए, ये सारा जब तक हम फोकस इसके ऊपर, और ये अपने शिक्षा का हो, अपने पब्लिक डिस्कोर्स का हो, ये भाग नहीं होता है, बिकॉज दिस इज एब्स्ट्रैक्ट. द डिफरेंसेस आर सॉलिड, यू कैन इजीली सी. So you don't have to talk about that and teach about that. But what is abstract, difficult to discern and imbibe, we need more talking and practicing that. And that we are doing less. That is why the strife. Yes, next question. Hello. I am Advocate Jiten Adkonkar, and thank you very much, ma'am, for this inspiring talk. It's a wonderful thing that is happening to Goa, this festival of ideas over the years. But I've been thinking about it every year I attend it, that it remains to these talks, to the ideas. What is next when we go out of this hall? Is there a plan of action? My question is to Madam, what is your plan of action so that those principles are lived by the people of India, so that the Indians get awakened in the way Swami Vivekananda tried to awaken them? What is a plan of action so that spirituality is lived by the Indians? Okay, one I mentioned in my talk itself, that is every day can we sit for some time and meditate on the fact, Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. मैं यह शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, यह शरीर अस्तित्व में आने के पहले भी मैं थी, और ये शरीर चला जाने के बाद भी मैं रहने वाली हूं. वो मैं कौन हूं, उसके ऊपर थोड़ी देर चिंतन करने से भी, आज जो हम देह बुद्धि से व्यवहार करते हैं, वी हैव बिकम टू फिजिकल, टू मटेरियल, थोड़ा उससे हम बाहर आएंगे. हम अपनी तरफ भी एज ए थर्ड पर्सन देख सकते हैं. जैसे साधन की कमी से हम बाधित नहीं होते. जैसे मैंने पेन लिया लिखने के लिए, और पेन ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, उस पेन को रख दूंगी, दूसरा पेन लूंगी. मेरे शरीर मन बुद्धि के विकार से मैं थोड़ी अलग हो जाऊंगी, तो मुझे जो ईर्ष्या होती है, आलस आता है, गुस्सा आता है, जो निराशा आती है, डिप्रेशन आता है, ये सारी जो डिप्रेशन की आज बहुत बड़ी समस्या है, ये सारी समस्या क्यों है? बिकॉज आई एम सीकिंग माई सेल्फ वर्थ इन माई फिजिकल वैलिडेशन. लोगों ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए, मैंने अच्छा दिखना चाहिए, लोगों ने मेरी स्तुति करनी चाहिए, लेकिन मैं वो हूं ही नहीं. कोई ऐसा कहेगा क्या, मैं साइकिल में गई, लोगों ने मेरी साइकिल की स्तुति करनी चाहिए, मेरी नहीं करने से भी चलेगा. लोगों का भी ऐसा होता है ना, अरे आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, तो लोग विनोद में कहते हैं, अच्छा साड़ी सुंदर है क्या? ऐसा होता है. तो मैं कौन हूं? मैं शरीर भी नहीं हूं. यह चिंतन रोज 5 मिनट पहले शुरू कीजिए, आधा घंटा तक ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं. ये हम नित्य रूप से करने लगेंगे. साधना का पहला है वो नित्य होना है. सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि. साधना कैसी करना है, अभ्यास, ये पतंजलि बताते हैं. दीर्घ काल नैरंतर्य, उसमें अंतर नहीं पड़ना है. सत्कार सेवितो, श्रद्धा से करना है, तभी ये भाव दृढ़ होगा. ये सुनने से नहीं होगा. व्हाट यू से आई एक्सेप्ट, बट पहले सुनना भी तो चाहिए. अपने यहाँ है ना श्रवणम, पहली स्टेज ही श्रवणम है, फिर है मननम, फिर निधिध्यासनम.
तो ये स्टेजेस तो हमें अपने अपने स्तर पे करनी पड़ेगी। यदि हम कोई ग्रुप करके आए हैं तो ग्रुप करके कर सकते हैं। तो एक ये, दूसरा अपनी जो एक एक्सेसिव कर्म शक्ति होती है अंदर, यानी रेस्टलेसनेस होता है, वी नीड टू चैनलाइज दैट एंड देयरफॉर एंगेज योरसेल्फ इन सम गुड वर्क टू द सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। ईच वन ऑफ अस वी शुड डू दैट। चाहे आसपास का समाज हो, जो भी हो, तो ऐसा भी कार्य करना चाहिए। नहीं तो ये रेस्टलेसनेस जो है वो भी हमें बहुत तकलीफ देता है। सो वी हैव टू चैनलाइज। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण हमें पता होगा। स्वामी विवेकानंद जब वापस आए, उन्होंने रामकृष्ण मिशन शुरू किया। तो उन्होंने जब अपने गुरु भाइयों को बताया कि रामकृष्ण मिशन शुरू करना है, सारे गुरु भाई प्रोटेस्ट करने लगे, एक दो छोड़कर। उन्होंने कहा, ये आप क्या झमेले में डाल रहे हैं, हम तो सन्यासी बन गए, अभी आप बोल रहे हैं स्कूल चलाइए, हॉस्पिटल चलाइए, ये सारा क्या है? ठाकुर ने कभी ऐसा किया नहीं, तो आप हमें बोलने करने के लिए क्यों बोल रहे? तो बहुत कुछ हुआ। आखिर वो गए शारदा माँ के पास। तो शारदा माँ ने बोला, जो नरेंद्र कह रहा है वो भी सही है, जो आप लोग कह रहे वो भी सही है। तो उन्होंने कहा कि माँ, ये दोनों सही है बोलने से तो समस्या तो नहीं छूटती, आप जवाब दीजिए। तो बोले, ठीक से समझिए, आप जो बोल रहे ठाकुर ने नहीं किया, ये सही है, लेकिन केवल ठाकुर ही 24 घंटा भगवान का नाम और ध्यान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारे अंदर एक अस्वस्थता है और उसको चैनलाइज करना है, तो वो सेवा में लाना है। इसलिए जो नरेंद्र कह रहा है वो सही है। और ऐसा करते हुए रामकृष्ण मिशन शुरू हुआ। तो हमें अच्छे कार्य में लगाना है। मैं सिर्फ खुद के लिए जीती हूं तो फिर मैं ध्यान भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी। तीसरा, स्वाध्याय करना है, अच्छे ग्रंथों के ऊपर चिंतन या श्रवण। आजकल तो मोबाइल में भी बहुत अच्छे अच्छे शास्त्रों के ऊपर के लेक्चर, तो भगवत गीता हो सकती है, उपनिषद हो सकती है, या अपना जो भी उपासना पंथा है उसमें जो भी ग्रंथ है उसके ऊपर रोज थोड़ा वाचन और चिंतन। ये 3 यदि हम शुरू करते हैं तो धीरे 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 हम में बदलाव आता है और जीवन की समस्याओं को झेलने की ताकत आती है। नहीं तो छोटे छोटे इसके लिए आज लोग खुदकुशी करते हैं, ड्रग्स खाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, और हम योग की बात दुनिया को बताने जा रहे हैं। कैसे संभव है? इनको प्रश्न पूछना है इधर ना। नमस्कार, मी लक्ष्मण पित्रे. आपलं फार सुंदर असं विवेचन ऐकलं, संतोष झाला. प्रश्न असा आहे, आपण एक मराठीत बोललं तर चालेल ना? हो हो चालेल. माझं मराठी इतकं हा, नाही ठीक आहे. ते ऐकलं म्हणून मराठीत बोलते. सकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विंदती मानवः असं म्हटलं. ईश्वराची पूजा म्हणजे स्वतःचं कर्म. आता दुसरं सांगितलंय की नमे कर्म फले स्पृहा. ही स्पृहा, कर्मफळामध्ये स्पृहा हाच इन्सेंटिव्ह असतो. तो जर नसेल तर स्वतः करता असेल किंवा आपलाच एक्सटेन्शन जी सोसायटी त्याच्यासाठी आपण काम करणार, तर हा इन्सेंटिव्ह नसेल तर हे काम कशा प्रकारे माणूस करणार किंवा कशा प्रकारे करावं, याबद्दल विवेकानंदांचे काय विचार आहेत, याबद्दल आपण जरा स्पष्टीकरण द्या. नाही, अगदी सोपं आहे ते असं आहे की मी जे काय काम करते ते मला ईश्वर प्राप्त व्हावा, माझी आत्मशक्ती प्रगटित व्हावी म्हणून मी ते काम करते. तर तो माझा ड्राईव्ह आहे. मी काम केल्यावर लोक माझी स्तुती करतील, छान म्हणतील, मला कोणीतरी काहीतरी हे देईल, प्रशस्तीपत्र देतील, यासाठी मी काम नाही करत आहे. किंवा वेतन देतील, ठीक आहे, वेतन जे यायचं आहे त्या याने येईल, पण माझं काम वेतनासाठी नाही आहे. तो माझा ड्राईव्ह हा आहे. हा जर ड्राईव्ह नसेल, फक्त बाकी म्हणजे बाह्य ड्राईव्ह असेल, तर बाह्य ड्राईव्ह कधी पण बदलू शकतो. हा ड्राईव्ह सदैव राहतो. तर यासाठी काम करायचं आहे. म्हणून तो जो श्लोक आहे ना, कर्मणी एव अधिकाराः ते मा फलेषु कदाचन, म्हणजेच आपल्याला कर्मामध्येच अधिकार आहे, चॉईस आहे की हे काम मी कसं करू, असं करू की असं करू. असं केलं तर माझं जीवन श्रेष्ठ होतं, असं केलं तर श्रेष्ठ नाही होणार. पण मला जो राग आला तर मी काहीतरी ऐकून दिलं, माझ्या तेवढेपुरती मनाची खुमखुमी जाईल, पण माझं जीवन श्रेष्ठ नाही होणार.
मग मी निवड करू शकते. अधिकाराचा अर्थच असा आहे की यू हॅव राईट टू डिसाईड व्हॉट टू डू. सो व्हॉट पाथ ऑफ म्हणजे मी कुठलं कर्म करीन ते निवड करू शकते. पण आपण फळ निवड करू शकतो का? नाही करू शकत. आपण त्याचं नियोजन करू शकतो. म्हणजे विद्यार्थ्यांनी जरूर नियोजन करायचं की मला इतके मार्क मिळाले पाहिजे. आपण समाजासाठी काम करतोय तर जरूर नियोजन करायचं की इथे स्कूल ड्रॉपआउट खूप होतात आहे, तर ड्रॉपआउट कमी झाले पाहिजे, तर आपण असं मुलांना शिकवूया. त्याचं जरूर नियोजन करायचं. पण अल्टिमेटली काय होईल हे तर आपण एक फॅक्टर नाही आहे ना, अनेक फॅक्टर काम करतात आहे. म्हणून म्हणजे फळ तुमचं ड्राईव्ह नसला पाहिजे. मी तुम्हाला एका उदाहरणाने सांगते की समजा दुकानामध्ये शर्ट विकत घेण्यासाठी एक माणूस गेला. ठीक आहे, त्याला तिथे खूप छान शर्ट्स दिसले. त्याला वाटलं हा शर्ट तर 1000 रुपयाचा असला पाहिजे. तो दुकानदाराला विचारतो की हा शर्ट कितीचा आहे. दुकानदार सांगतो की हा 800चा आहे. ठीक आहे, याला तर 1000 वाटले होते. तर आता हा असं म्हणेल का की 800 का बरं, मला तर वाटलं होतं हा 1000चा आहे, तर तुम्ही 1000 घ्या, असं हा म्हणेल का कधी? हा ग्राहक जो आहे तो असं कधीच नाही म्हणणार. तो काय म्हणेल, अरे 800 काय, त्या दुकानात तर मी 600ला बघितला, तर तुम्ही 700ला तरी द्या मिनिमम. म्हणजे एकदा दुकानदारांनी शर्टची किंमत 800 लावल्यावर त्याला कुठलाही ग्राहक 805 रुपये देणार नाही. त्याला एक तर 800 मिळतील किंवा 800 पेक्षा कमीच मिळतील. तसंच माझ्या कामासाठी मी किंमत लावली की लोकांनी माझी स्तुती करावी, तर मला जास्तीत जास्त काय मिळेल? मला स्तुती मिळेल, पण मला ईश्वर नाही मिळणार. सिद्धिं विंदती मानवः नाही होणार. म्हणून माझ्या याला मी प्राइस टॅग लावत नाही. मला माहित आहे माझं जे काम आहे ते ईश्वर प्राप्तीसाठी आहे. मग त्याच्या बाय प्रॉडक्ट्समध्ये जे येईल जाईल हा खरा ड्राईव्ह आहे. आणि हा जबरदस्त ड्राईव्ह आहे. एकदा आत्मसात झाला की मग परिस्थिती बिघडली तरी आपण तुटत नाही, लोक बदलले तरी आपण तुटत नाही. माझा ड्राईव्ह कायम राहील. We can take one more small question. नमस्कार. मी कोल्हापूरमध्ये असतो, मीडिया पर्सन राजेंद्र मोकोटे. स्वामी विवेकानंदजी भारत भ्रमण करताना पेळगावला कोल्हापूरला होते वास्तव्याला, त्या मंगळपेठ भागामध्येच मी राहतो. माझा प्रश्न छोटासा असा आहे की स्वामींचं एक मोठं कोट आहे की भुकेल्या पोटी तत्वज्ञान व्यर्थ आहे. आणि इतके वर्ष स्वातंत्र्य होऊन अजूनही प्रचंड संख्या भुकेलेली आहे. तर आपण अजून भुकेलेलेच पूर्ती करू शकत आहे, तर पुढे कसं झालं, काय नेमकं केलं पाहिजे? उत्तराच्या आधी जरा फक्त तुमचं नाव सांगा. द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज Q&A सेशन इज गोइंग टू गेट अ स्पेशल सरप्राईज गिफ्ट. दॅट्स वाय आय एम आस्किंग फॉर द नेम्स प्लीज. राजेंद्र मोकोटे, कोल्हापूर. ओके, सॉरी. तुम्ही तेव्हाच सांगायला पाहिजे होतं, मी तेव्हाच दिलं असतं. सॉरी, मी तेही मराठीत सांगितलं. ऐसा है कि स्वामी जी ने जो भाषण दिए ना, कुछ उधर दिए कुछ इधर दिए. ठीक है, तो उधर जो आवश्यक है वो उस प्रकार से बताया, इधर जो आवश्यक है इस प्रकार से बताया. हम बहुत बार उधर का मैसेज इधर लगाते हैं, इधर का मैसेज उधर लगाते हैं. तो स्वामी जी ने जब मिशनरीज से बात की तब उन्होंने बताया कि वी हैव इनफ ऑफ रिलीजन एंड यू डोंट टीच अस रिलीजन ऑन एम्प्टी स्टमक. आप देखिए आज भारत में स्थिति क्या है. तो ये जो खाली पेट है उनको आप पहले खाना दीजिए, आप उनको पहले मदद कीजिए. ये स्वामी जी ने मिशनरीज को कहा था. अभी समझे, ऐसा मान लेते हैं कि यही संदेश उन्होंने यहां भी बोला है. तो ये तो स्वामी जी ने कहा ही है कि सर्व मैन सर्व गॉड. मीन्स जो दुखी है, पीड़ित है, वंचित है, आप वहां जाके सेवा कार्य कीजिए, उनको मदद कीजिए. लेकिन वो मदद करते हुए यही मेरी आध्यात्मिक साधना है. ये दरिद्र नारायणो भव, मूर्ख नारायणो भव, वंचित नारायणो भव, हे स्वामी विवेकानंद के शब्द है. तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं आप जब उनको मदद कर रहे हैं, ये ईश्वर की पूजा है, इस भाव से करेंगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है.
और जिनको आज पहले अनाज की जरूरत है, अन्न की जरूरत है, उनको पहले वो दीजिए। फिर स्वामी जी का और एक वचन है, वो कहते हैं कि साइड बाय साइड विथ मटेरियल वेल बीइंग, इफ यू डू नॉट हैव स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, यदि दोनों साथ साथ नहीं चलेगा तो आर्थिक संपन्नता आने के बाद उन पैसों का गलत उपयोग किया जाएगा। जो हम देखते हैं जहां ऐसा हुआ है, उनको पैसों का क्या करना पता नहीं है, तो इसीलिए ड्रिंक्स, ड्रग्स, घूमना, ऐसे ही पैसे उड़ाना, इस पर जाता है। सो अलोंग विद दैट, इवन अलोंग विद दैट, द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट शुड टेक प्लेस। ऐसा स्वामी जी का संदेश है। One more question is allowed by the organizers. मी श्रीनिवास चांदेलकर, गोवा. तर माझा एक प्रश्न आहे की हे रिबर्थ आहे ना, त्याच्याबद्दल स्वामीजींनी काय सांगितलेलं? रिबर्थ, हां, रिबर्थ बद्दल स्वामीजींनी एक उदाहरण देतो मी. हां, माझा नातू आहे, तो दीड वर्षाचा असताना सुद्धा त्याला आठवायचा पहिल्या जन्माचा, म्हणजे नवीन नवीन गाड्या त्याला पाठ होत्या त्यावेळी सुद्धा. म्हणजे नहीं, वो तो स्वामी जी ने कभी रीबर्थ नहीं है ऐसा कभी बोला नहीं. और जो हमें यानी कॉमन जोड़ने वाले जो सूत्र है उसमें पुनर्जन्म पे विश्वास, ये भी उन्होंने बताया है. पुनर्जन्म को लेकर आज विज्ञान में भी बहुत सारा रिसर्च हो रहा है. एक डॉक्टर स्टीवनसन करके है, फिर डॉक्टर क्या नाम है उनका, जिन्होंने मेनी मास्टर मेनी लाइव्स पुस्तक लिखा है, बहुत अच्छा पुस्तक है, तो मैं एकदम भूल गई, नाम नहीं याद आ रहा है. तो वो है, अपने देश की एक डॉक्टर सतवंत पसरीचा थी. ऐसे अनेक लोगों की एक ऑल इंडिया टीम है, सॉरी वर्ल्ड लेवल पे एक टीम है, और वो पुनर्जन्म का अध्ययन करती है. तो जैसे जिस किसी बच्चे को कुछ याद आता है, वो जाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं. कभी कुछ फेक होता है, कभी सही भी होता है, यानी इनएक्सप्लेनेबल होता है कि सच में बच्चे को कैसे ये याद आ रहा है. तो ये सारे इससे एक इंटरनेशनल सेमिनार में, वो सतवंत पसरीचा का पेपर था जो मैंने सुना था, तो वो कहती है कि आज हम इस स्टेज में आ गए हैं कि वी कैनॉट डिनाई रीबर्थ, बट वी कैनॉट से रीबर्थ इज देयर बिकॉज वी डोंट हैव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. तो रीबर्थ के यानी रीबर्थ पे पूरे ही एशियन देश, सारे देशों का विश्वास है, और बाकी देशों में भी शुरू में था, बाद में वो निकल गया. जैसे जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं, जॉन जिनका बपतिस्मा किया, सेंट जॉन, उनके बारे में वो कहते हुए ऐसा एक वाक्य है कि पहले जन्म में भी इन्होंने ये किया था, एक कुछ काम किया था ऐसा. तो ऐसे हमें कुछ रेफरेंसेस इवन बाकी इसमें भी मिल जाते हैं. तो रिबर्थ तो है. स्वामी जी के ऐसे बहुत उदाहरण है. जब पावर्स ऑफ माइंड करके उनका जो पुस्तक है, उसमें इसके बारे में काफ़ी एक्सप्लेनेशन है कि जैसे हम जा रहे हैं बहुत भीड़ में, कोई 2-3 लोग ही हमारे मन में क्यों याद आ जाता है, यानी वो चेहरा हम भूलते नहीं हैं. इतने लोगों को देखा, इनको थोड़े क्षण ही देखा, लेकिन हम भूलते नहीं है. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इस जन्म में नहीं देखा है, पहले जन्मों में भी देखा है. ऐसा कहते हुए यानी स्वामी जी का रिबर्थ पे पूरा विश्वास भी था, एक्सप्लेनेशंस भी उन्होंने उसके दिए हैं. ये इसमें भी आते हैं पातंजल योग सूत्र में, इसलिए जो राजयोग का पुस्तक है उसमें भी उसके बारे में चर्चा है. जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्, ऐसा वो सूत्र है जिसमें इवोल्यूशन जो इसने डार्विन ने बताई. तो स्वामी जी कहते हैं हम इवोल्यूशन को मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ इवोल्यूशन नहीं है, इन्वॉल्यूशन भी है. व्हाट इज इट दैट इवॉल्व्स एंड व्हाई इट गॉट इन्वॉल्व्ड. सो उसका जो एक्सप्लेनेशन है राजयोग में, आप जरूर पढ़िए. जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्.
ऐसा करके जो सूत्र है उसका अध्ययन करने से पुनर्जन्म के बारे में बहुत सारी बातें या टोटल इवोल्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें मिलेगी. No question from Gen Alpha sitting here. Gen Z, yes. Yes, yes. Now you will be. Yeah, namaste, ma'am. My question is more on our culture. So I've always heard, people saying that our culture is, and I believe also that our culture is very rich. It's Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, which has a lot of knowledge and, solutions for real life problems. It gives you a direction. But like you said, ma'am, we have forgotten. I would say for my generation, it is not forgotten, but we are not at all aware about it. And that is the biggest problem. Like, just giving the example of Mahakumbh. Like, everybody wanted to go for Mahakumbh, but I don't know how many actually knew the significance of Mahakumbh. Yeah. So that is why today, as a parent, I have a 4-year-old daughter. I feel it's my moral responsibility to understand these, these books or this culture in which we are born. And that's why I just want to know, like as an individual, which are the minimum books we should read, we should, at least know it, so that tomorrow we can pass it on to our next generation. And tomorrow in life, when they grow up, they face challenges, they know that these books can give them a direction. Your name, please. Akshata. This culture topic, when we started, that is Vivekananda Kendra started schools in Arunachal Pradesh, we used to take teachers from different states to work there because that time there were no educated teachers available. So, as I told you that Dr. Indrajit Dey's question, even the teachers didn't know, because what you told very rightly, it's not the fault of the youth. It has not reached to them, the knowledge. So they used to sometimes tell children, why you are behaving like a jungli, you are jungli. Or what is this religion? What is this way of doing puja? And children used to feel very hurt. So we decided we should train our teachers in culture. And that is how we started residential camps at Kanyakumari, 25 days every year for all the new teachers. So when those subjects started, they used to ask many questions, and slowly the subject became very exhaustive and also multidimensional. Ultimately, all our principals, teachers, they started telling me that you bring out the book, it gives us clear understanding of culture. All the doubts get removed because I have developed some structure, how to utilize that structure and understand the culture. We cannot understand the tradition of each and every community. That is not possible. So what is the structure if we apply? We understand any puja or anything that is going on. Or what are all the distortions that we are fed about our culture. So I can tell you my book is there, and in that book for each chapter I have given references. So you will get the right books names also in that. So the name of my book is Indian Culture, Challenges and Potentialities. Many governors and many persons, they told me that it has given them very a clear understanding of culture. So if you are interested, here our Kendra Karyakartas will be there. Or later you can take number from anyone and get the book. Yes, this is the end of the QA session. I know many more want to ask the questions, but we have to have an end some way so that we begin again tomorrow, because it's a cyclic nature of the world. Ma'am, now you have a duty to select the best question. So in best possible way, I have written some cues. I have written some cues over here. Actually, questions are very good. While coming, I was telling our Shanti and Natasha that in India, our tradition is always question answer.
all Upanishads are in question answer form. Lectures are very less. So it's only when we interact with each other, we understand more. So I was very happy that Q&A is there. Actually, I can go by your judgment. Because I was more involved, you were the real witness. I think I will go with the claps of the audience for the question. And that was the last question by Akshata. So I request Akshata to please come on the stage. The best question in consultation with the audience today, the winner is Akshata. And I request Mr. Macvaz, who asked the first question, to please come on the stage and on behalf of M Associates, give the special gift to Akshata. Akshata, please come. Do watch the screen behind me. So Akshata is going to get this fine dining, sky dining experience. So many of you are envious of her, but you can contact Mr. Macvaz for that experience, of course the paid one. Thank you. I now request Siddhi to take over. Thank you so much, Nivedita ji, for this enriching experience and enriching the lives of many like us. Your work, your contribution and service to society is really great. And as said by you, let's open the gift which Swami Vivekananda has given us and uplift and enrich our lives. Thank you so much for this thought-provoking experience. We also thank Ma'am Sangeeta Abhyankar for wonderfully moderating this session. I now request our director, Shri Sagun Velip, to come on stage. And also escort our one of the DDK committee members, Shri Govind Parvatkar. Thank you. Sir, a kind request to present mementos to today's guest speaker and moderator as well. Sir, requesting you to present memento to today's moderator. So present this memento to our today's moderator. Sir, a moment, please. Please present this memento to our committee member, Shri Govind Parvatkar ji. Thank you, everyone. Can request, we've kept feedback registers. Do give us your feedback, suggestions, and compliments, of course. And
let me tell you all about tomorrow's lecture. Sailing Around the World by Abhilash Tommy, who is Commander, Naval Officer, Aviator and Champion Yachtsman. Do visit, please be seated by 4:45 p.m. sharp.